Good morning, students. Today we have to start chapter 8 Winds, Storms, and Cyclones. So let's start the chapter number 8. Odisha was hit by a cyclone wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Orissa again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives. Property worth crore of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication, and electricity supply. But what are cyclones? How are they formed? Why are they so destructive? In this chapter, we shall seek answers to some of these questions. We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone before we begin. Remember that moving air is called wind. हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड हम बोलते हैं हवा को, और एयर होती है सिंपल जो गैसेस का मिक्सचर होता है. ठीक है, जब एयर मूव करती है तो उसे विंड कहते हैं. बट जब एयर बहुत ज़्यादा स्पीड पे मूव करती है तो फिर उस टाइम क्या आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब तूफान वगैरह आते हैं. ओके. 8.1 एयर exerts pressure. You need to boil water in the following activity. Take a tin can with a lid. Find it approximately half with water. Heat the can on a candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Boil out the candle immediately. Put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? हाँ जी students, when we put hot water in the can, the shape of the can will be changed. See here, we are taking a can. Now we are putting hot water in the can. तो what will happen? The shape of the can will distorted, मतलब उसकी shape खराब हो जाएगी. If you cannot get a tin can, take a soft plastic bottle. अगर प्लास्टिक बॉटल में भी हॉट वाटर डालते हैं तो वो उसकी जो शेप है वो इरेगुलर हो जाती है. एम्प्टी द बॉटल एंड इमीजिएटली कैप इट टाइटली. प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस व्हेन यू फ्लाई अ काइट. डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प? If you are in a boat, is it easier to row if there is wind coming from behind you? Do you find difficult to ride a bicycle against the direction of wind? You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? Discuss with your friends how the air in the bicycle tube keep it in the shape. All these experiences show that air exert pressure. हाँ जी स्टूडेंट्स, बाइसिकल के टायर में हम ट्यूब में हम एयर को या गैस को फिल करते हैं. क्यों फिल करते हैं? क्योंकि जो एयर है वो उसकी शेप को रेगुलर रखती है. शेप को रेगुलर तभी रख पाती है बिकॉज एयर हैव प्रेशर. हम काइट को करते हैं फ्लाई, तो उसमें भी क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो काइट है वो इधर उधर होता रहता है अपने आप. ठीक है, अगर हम ज़्यादा ट्यूब में एयर भर देते हैं तो वो बर्स्ट हो जाती है. मतलब कहीं ना कहीं जो एयर है उसमें प्रेशर है, वो क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है. इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट लीव ऑफ ट्री, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग. जब विंड ब्लो करती है, आंधी वगैरह आती है, तो जो बड़े बड़े फ्लैग्स लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, वो फट जाते हैं, कई बार उखड़ जाते हैं. बड़े बड़े यानी कि जो लोहे की भी, आयरन के भी जो हमारी रूफ़ के ऊपर टिन लगे होते हैं वो भी टूट जाते हैं या उड़ के चले जाते हैं. तो मतलब एयर में प्रेशर है. यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर. लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन गेट डिस्टॉर्टेड. As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside.
The pressure of air inside the can decreases than the pressure exerted by air from outside the can. As a result, it can be compressed. हाँ जी, जब भी बेटा आप किसी कैन को, उसमें वाटर, अगर उसको आप क्या करते हो, उसमें गर्म पानी डालते हो तो उसकी शेप क्यों बिगड़ती है? क्योंकि बाहर जो एयर का प्रेशर है दैट इज़ डिफरेंट, और बॉटल के अंदर जो प्रेशर का एयर का प्रेशर है दैट इज़ डिफरेंट. तो इस डिफरेंस की वजह से ही सिर्फ क्या होता है कि जो हमारा जो बॉटल है प्लास्टिक की या जो कैन है उसकी शेप इरेगुलर हो जाती है. दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. हाई स्पीड winds are accompanied by reduced air pressure. Activity 8.2. Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper bowl just inside the mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottle of different size. Challenge your friends if they can force. अब देखो बेटा इसमें क्या कर रहा है, एक पीस ऑफ पेपर ले रहा है, उसको बॉल में कन्वर्ट करके उसको अपने माउथ में रख रहा है, और एम्प्टी बॉटल के अंदर क्या कर रहा है, उसको एक तरीके से फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, माउथ से उसको वहाँ फेंक रहा है. ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा. द पेपर बॉल इन द ब्लोइंग इन टू द बॉटल. पहेली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन. वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल. उसको उसमें डालना क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी. एक्टिविटी 8.3. ब्लो द बलून्स. टेक 2 balloons approximately equal size, put a little water into the balloons, blow up the both balloon, tie each one of the string. Hang the balloon 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick. Blow in the space between the balloons. What did you expect? What happened? Try different ways of blowing the balloons to see what happened. अब जब देखो बेलून्स ब्लो हैं, उनके बीच में अगर आप एयर ब्लो करने की कोशिश करोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ेगा. वही है, प्रेशर क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर में प्रेशर है. एक्टिविटी 8.4. कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट. होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 centimeter लॉन्ग एंड 3 centimeter वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 finger as shown in figure 8.5. Now blow over the paper. हाँ जी, इस तरीके से अगर हम किसी थिंग को लेते हैं और इसको अपने ब्लो करते हैं तो इसमें से आवाज़ भी आती है, और ये इसमें ऐसे जैसे हवा की तरह ये लहराने भी लगती है, वेव बन जाती है इसमें. पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. बूजो थिंक द स्ट्रिप विल बी बेंड डाउन. अप भी आ सकती है, डाउन भी जा सकती है. वट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? लेट अस अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 2.8.2, 3 and 4. Were the observation along the lines you thought? Do you get the feeling that the increased wind speed accompanied by reduced air pressure? ज़्यादा अगर wind speed होगी तो air pressure reduce होगा उसकी वजह से. When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than the near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. जब हम बॉल को उसमें डालने लगेंगे, माउथ से बॉल को बॉटल में डालने लगेंगे तो वो वापस बाहर आ जाती है. इट विल कम आउटसाइड, क्योंकि जो बॉटल के अंदर एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है, बाहर एयर प्रेशर कम है. एक्टिविटी 8.3. यू सा दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स दे मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर. जब हम बैलून्स के बीच में ब्लू करेंगे इस एक्टिविटी में, जैसे अपने ने देखा था, तो ये बैलून एक दूसरे के आसपास आएंगे. हाउ कुड दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? दिस कुड हैपन इफ प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून एंड सम हाउ रिड्यूस. जैसे ही उनमें प्रेशर रिड्यूस होगा तो दे विल कम टूवर्ड्स टू ईच अदर. द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश them towards each other. In activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upwards. ऐसा आपने करके देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चे करके देखते हैं. You can try. Again, this could happen if blowing over the paper reduce the air pressure above the strip. We see that increased wind speed is indeed accompanied by the reduced air pressure. हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज़ अंडरलाइन कि जब विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो उससे एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग? इफ द रूफ्स आर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे. इफ दे हैव एनी सच एक्सपीरियंसेस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स.
सही, अगर बहुत ज़्यादा विंड स्पीड होगी, आंधी वगैरह चल रही है, तो मैंने आपको भी बताया कि रूफ़ पे जो टिन वगैरह लगे होते हैं, लोहे की छत बनी होती है लोगों की, तो वो उड़ जाती है क्योंकि उसमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब जो हमारी दूसरी सीमेंट वाली होती हैं वो हैवी होती हैं, इसलिए वो नहीं साथ में उड़ पाती। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ winds are produced and how they bring rain, how they can be destructive sometime. You already know that when air move it is called wind. Air moves from the region where the high pressure is high to the region where the pressure is low. Underline please कि जो हमारा विंड होती है वो हमेशा हाई रीजन टू लो रीजन में ही मूव करती है। द ग्रेटर द डिफरेंस द फास्टर द एयर. But how are the pressure difference created in nature? Is the difference in temperature involved? The following activity will you help to understand this. Beta, today we are doing only this much topic. I hope you have got it. If you have any kind of doubt, you can ask the doubts me in the next live session. Okay, thank you. Have a nice day.